آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تعلیمی سمٹ، پاکستان، بھارت اور افغانستان کے شعبہ تعلیم کے نوجوان ایکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں سیلاب متاثرین اب ڈینگی سے خوفزدہ، جن کو ایڈمیشن کی اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے۔ اور خواب ہے کہ میری کمیونٹی سے بھی کوئی ملک کا صدر بنے۔ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ ببلی ملک کی امید۔ انہوں نے جب کہا ببلی صاحبہ، ببلی صاحب کہاں ہیں، تو مطلب وہاں سے مجھے احساس ہوا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یونیسیف اور سندھ حکومت کی مشترکہ کوشش سے سندھ کے شہر خیرپور میں سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی میں ایک عارضی اسکول قائم کیا گیا ہے جو کہ 200 بچوں کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مدد کر رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں سیلاب سے تعلیمی نظام کے ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کم از کم 17,500 سکولز مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں، جس سے لاکھوں بچوں کی تعلیم میں خلل پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی بچوں کے لیے ایجنسی کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سیلاب سے خاص طور پر ایسے علاقوں میں بچوں کی تعلیم مزید متاثر ہو سکتی ہے جہاں 1/3 بچے پہلے ہی اسکول سے باہر ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں جاری جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں اس بار تعلیم کے شعبے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، اور UNGA کے 3 دن جاری رہنے والے ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ کا آج آخری دن ہے، جس میں عالمی رہنما خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب بھی آج ہوگا۔ اقوام متحدہ کے مطابق کووڈ کی عالمی وبا کے دوران دنیا کے 90% سے زیادہ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، لیکن واحد مسئلہ کووڈ ہی نہیں، دیگر بحرانوں اور تنازعات، سکڑتی ہوئی معیشت، توانائی کی کمی اور غذائی عدم تحفظ کی وجہ سے یہ عالمی تعلیمی بحران مزید پیچیدہ ہوا ہے۔ اس سمٹ میں پاکستان سے معظم شاہ بخاری نے بھی شرکت کی۔ وائس آف امریکہ کی ان سے پاکستان میں تعلیمی نظام کے مسائل کے حوالے سے بات ہوئی۔ ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑا ایشو جو پہلا آتا ہے وہ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کا آتا ہے۔ جب بندے کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو اس کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجے، اور اگر اس نے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج بھی لیا ہے تو وہ صرف اس کا سول پرپس جو ایجوکیشن کا ہوگا، اٹ ول بی ٹو ارن بریڈ ٹو رن دا فیملی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آن گراؤنڈ جو ہے ہمارے پاس پاکستان میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں ان ٹرمز آف پالیسیز، ان ٹرمز آف پریکٹیکل اسٹیپس، جہاں پہ ہم انکلوسیو پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ فار انسٹنس ہمارا اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول الگ ہوتا ہے، ہمارا ارلی چائلڈہڈ کا ایجوکیشن کا اسکول الگ ہوتا ہے، اور ہمارا کنونشنل ٹھیک ٹھاک بچوں کا جو ہے وہ اسکول الگ ہوتا ہے۔ تو ہم آلریڈی جو سوسائٹل ڈیوائڈ ہے وہ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ ڈسپیرٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سارے بچوں کو سیگریگیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان تعلیم کے شعبے کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے اور اس کے حل کے لیے کیا کر رہا ہے؟ انشمن آپٹے نے اس بارے میں بھی معظم سے بات کی۔ سیڈلی پاکستان کی طرف سے ابھی تک نہ میں نے کوئی دیکھا ہے، نہ ہی کسی کی طرف سے مجھے اپروچ کیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اپروچ ڈزنٹ میٹر، لیکن سپورٹ از سم تھنگ دیٹ میٹرز دا موسٹ، کیونکہ اندر جو میرے کولیگس کام کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی کام کر رہے ہیں جتنا کام میں کر رہا ہوں، لیکن ان کا کام افیکٹو کیسے ہے، کیونکہ ان کی فیڈرل باڈیز، ان کی گورنمنٹس وہ ان کو سن رہی ہیں، اور ان کا پریکٹیکل اور گراؤنڈ ایکسپیرینس لا کے ٹیبل پہ اس کے تھرو کنسلٹیشنز کر کے وہ جو ہے وہ گلوبل فریم ورک میں اس کو اٹیچ کر کے، اور وہ دے آر موونگ فارورڈ ود دیئر ایکشنز۔ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، نیو یارک میں ہونے والا یہ تعلیمی سمٹ کور بھی کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ انشمن، معظم سے جو آپ کی بات ہوئی وہ تو ہم نے دیکھی، اس سمٹ میں دنیا میں تعلیمی نظام کو درپیش مسائل پر مزید کیا بات ہوئی؟ کیا ہائی لائٹس ہیں اب تک کی اس سمٹ میں ہونے والی کارروائی کے؟ اسد، آج جو ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ ہے اس کا آج تیسرا دن اور آخری دن ہے۔ آج کے دن ورلڈ لیڈرز جو ہیں، جو پورے دنیا بھر کے ملکوں سے آئے ہوئے لیڈرز ہیں، وہ اپنی جو ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے کمٹمنٹ ہے، جو کوئی نئے انویسٹمنٹس اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار آج ہوگا۔ یہ سمٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ 3 دن چلی، جو پہلا دن ہے اسے یوتھ موبلائزیشن ڈے کہا گیا تھا، اور دوسرے دن NGO سیکٹر کے ریپرزنٹیٹیوز، یوتھ ریپرزنٹیٹیوز باقی ملکوں
मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स और यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके भी कोई सेशंस हुए जिनके दरमियान बातचीत हुई कि किस तरह से एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाया जा सकता है। ये जो समिट है उसके पहले दिन एक डिक्लेरेशन भी यूएन सेक्रेटरी जनरल को दी गई, जिसके अंदर यूथ लीडर्स के ये जो सजेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं उनको शामिल किया गया था। तो मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर को बेहतर और इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाने का मकसद ये एजुकेशन समिट रखती है। कोविड वबा की वजह से एजुकेशन सेक्टर को दुनिया भर के बच्चों के तालीम पर बुरा असर पड़ा है, इसको रोकना ये भी इस समिट का एक मकसद है। और इस एजुकेशन को किस तरह से इंक्लूसिव, मतलब सबकी तरफ या सबकी और सबको शामिल करने के लिए किस तरह से उसमें शामिल किया जा सकता है, उस पर भी बात इसके बारे में भी। अंशुमन, आपकी अफगानिस्तान और भारत के यंग लीडर्स से भी बात हुई होगी, उस हवाले से आप कुछ बता रहे थे जब हमारी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी। उनका अपने मुल्कों में तालीम के शोबे को दरपेश चैलेंजेस के बारे में क्या कहना है? असद, मैंने भारत से आई हुई यूथ लीडर नुधारा यूसुफ से बात की और हाल में भारत के कुछ रियासतों में लड़कियों को, खासकर लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में जाने से रोका गया, ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर मैंने उनकी रिएक्शन पूछी। तो उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है और उसके अंदर किसी भी वजह से किसी से भी ये एजुकेशन का जो एक इंसानी हुकूक है वो छीना नहीं जाना चाहिए। I don't think that that's just a challenge of education. मैं नहीं समझती कि चैलेंज सिर्फ तालीम का है। मेरे ख्याल में ये हमारी पूरी कौम की मजमूई समत के लिए एक चैलेंज है। आखिरकार इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। मैं समझती हूँ कि हम इस पर नाज करते हैं कि भारत एक सेकुलर मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतों में से एक है। हम आज़ादी के हुकूक बहुत पहले तश्कील दे चुके हैं। तालीम एक हक़ है और मैं नहीं समझती कि किसी भी चीज़ को लोगों को इस बुनियादी इंसानी हक़ के हुसूल से रोकना चाहिए। Should stop someone from acquiring that fundamental human right. अफगानिस्तान से आई हुई यूथ लीडर आयशा खुर्रम से हमने पूछा कि अफगानिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन पर जो हेवी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि इस समिट के दौरान अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ज़्यादा बात अफगानिस्तान पर नहीं देखी, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि वो खुद अपने बलबूते पे इस एरिया में क्या कदम उठा रही हैं। मुझे अभी तक कोई फैसला कुन इक़दाम नज़र नहीं आया और न ही मैंने आज के पैनल में इस मसले के बारे में कुछ ज़्यादा सुना है जिसका जिक्र होना चाहिए था। मैं अपनी इनफरादी हैसियत में ऑनलाइन तालीम के ज़रिए अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए तालीम को काबिल रसाई बना रही हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा उसमें लॉजिस्टिक और तकनीकी मदद देने और जो सबक उसने कोविड-19 की वबा से सीखा है उसे फराहम करके बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया अंशुमन, आप ये एजुकेशन कवर कर रहे थे, एजुकेशन समिट, और उस हवाले से आपकी जिन से बात हुई आपने वो भी हम तक पहुंचाई। शंघाई ताउन तंजीम के जुमे के दिन ख़त्म होने वाले 2 रोज़ा सरबराही इजलास के दौरान चीन और रूस के सदूर की मुलाकात में यूक्रेन और ताइवान का मामला भी ज़ेर बहस आया। रूसी सदर पुतिन ने ताइवान के मामले पर चीन के मौक़िफ़ का साथ देते हुए कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। अमरीकी कांग्रेस के कानून साजों के एक ग्रुप ने इसी माह के शुरू में ताइवान की सदर से मुलाकात की थी। चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के ऐन दरमियान ये अमरीकी कांग्रेस की तरफ से जमहूरिया ताइवान की हिमायत के ताज़ा तरीन मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस के लिए VOA की कैथरीन जिप्सन ने ताइवान के लिए अमरीका की जानिब से सिक्योरिटी और इक़्तिसादी इमदाद के बारे में कांग्रेस के इस वफ़द के अरकान से बात की। ताइवान की हिमायत की तजदीद के तौर पर अमरीकी कांग्रेस के 1-2 जमाती वफ़द ने चीन की धमकियों के पेश नज़र ताइवान के साथ गहरे ताल्लुकात की अपील की है। ताइवान का दौरा करने वाले कांग्रेस के हर वफ़द की तरह हमारा दौरा भी ताइवान के लिए कांग्रेस के आहनी अज़्म की अलामत है। ये ताज़ा तरीन दौरा गुज़िश्ता माह नैन्सी पेलोसी के उस तारीखी सफ़र के बाद अमल में आया है जो 25 सालों में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की किसी स्पीकर का पहला दौरा था। वफ़द की एक रुकन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अब अमरीकी तरीक़ाकार में तब्दीली का वक्त आ गया है। हमारी पॉलिसी हमेशा से वाज़ेह हिकमत अमली की जगह मुबहम हिकमत अमली की रही है, लेकिन ऐसा बहुत साल पहले, तकरीबन 40 साल पहले था। और हमें जिस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि चीन इस अरसे में ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ है। वो तब इतनी अहम फ़ौजी या इक़्तिसादी ताकत बनने के करीब भी नहीं था जो आज है। बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। इस इक़दाम की चीन की जानिब से फौरी तौर पर मज़म्मत की गई।
ताइवान को अमरीकी असलहे की फरोख्त वन चाइना उसूल की और चीन और अमरीका के 3 मुश्तरका एलामियों की दफात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करती है, खास तौर पर 17 अगस्त के एलामिया की। ये चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात को शदीद ज़ख्म पहुँचाती है और चीन अमरीका ताल्लुकात और आबनाए ताइवान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये ताइवान की आज़ादी की हामी अलहदगी पसंद ताकतों को संगीन नौयत के गलत इशारे भेजती है। ताहम अमरीकी कांग्रेस में दोनों जमातों में ही ताइवान की मजीद हिमायत के लिए भी तायद मौजूद है, जिसमें ज़राअत और तिजारत में करीबी ताल्लुकात भी शामिल हैं। उन्होंने हमसे आज़ाद तिजारती माहदे में शामिल होने को कहा है। वो अमेरिका के साथ माहिदा चाहते हैं और ये वो चीज़ है जिस पर हम ये देखने के लिए काम कर रहे हैं कि आया हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपने साथ उनकी तिजारत को मज़ीद बढ़ाना और तिजारत में एक तरह का तवाज़ुन पैदा होते देखना चाहते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के एक पैनल को एक समाअत में बताया गया कि अमरीका और ताइवान के दरमियान आज़ाद तिजारत का एक नया मुआहिदा और ताइवान को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में लाना चीनी आमरीत का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा करेगा। Taiwan is at the front line of एक ऐसे वक्त में जब बीजिंग इस जजीरे की जमहूरियत को ख़त्म करने और दोबारा इत्तेहाद पर मजबूर करने की एक वसी हिकमत अमली के तहत इस पर सियासी, फौजी और इक्तिसादी जबर में इजाफा कर रहा है। ताइवान इस मुखासमत के अगले महाज पर है। अमरीका को ताइवान की इन कोशिशों में मदद करनी चाहिए जो वो अपने अवाम, जमहूरियत और आज़ादियों के दिफा के लिए कर रहा है। अमरीका ताइवान दो तरफा तिजारत का मुआहिदा या BTA इस मकसद को पूरा करेगा। ये ताइवान के अवाम के साथ अमरीकी यकजहती का इजहार होगा और मजबूत जमहूरी इदारों, मुस्तहकम सिविल सोसाइटी, शफाफ और काबिल एहतिसाब हुकूमत और मुआशी आज़ादियों को फ़रोग़ देने में उनकी कामयाबी का इनाम होगा। अमरीकी सेनेट की एक अहम कमेटी ने भी इस हफ्ते ताइवान सिक्योरिटी एक्ट की मंजूरी दी है, जो मंजूर हो जाने की सूरत में आइंदा 5 बरस के दौरान सिक्योरिटी की मद में $6.5 बिलियन फराहम करेगा। कैथरीन जिप्सन के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। माहौलियात से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में मौसम की वजह से सानेहात पिछले 50 सालों में 5 गुना बढ़े हैं। ये साने रोज़ाना औसतन 115 अफराद की जान ले रहे हैं। पाकिस्तान भी इस वक्त अपनी तारीख़ के बदतरीन सैलाब और इससे जुड़े इंतहाई मसाइल का सामना कर रहा है, जिसमें अब तक 1500 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके। मुल्क के कुदरती आफात से निमटने के इदारे NDMA के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुल्क भर में 19 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 12,700 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें और 374 पुल भी इस सैलाब की नज़र हुए हैं। एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है वो सैलाब मुतासरीन की सेहत का है। कोविड की आलमी वबा की वजह से पिछले 2 सालों के दौरान अगर किसी बीमारी का नाम ज़्यादा नहीं सुना गया था तो वो डेंगू था, लेकिन इस वक्त एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से फैलने वाले इस वायरस ने एक बार फिर इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया है। इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की रिपोर्ट। 25 साला अहमद अली डेंगू की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वो बताते हैं कि एक शाम वो दोस्तों के साथ पार्क में बैठे थे जहां मच्छरों ने इन्हें काटा, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास आया, इन्होंने टेस्ट करवाया तो फिर दवाइयाँ शुरू, ड्रिप लग गई मुझे, तो उसके बाद थोड़ा सा बेहतर अभी फील कर रहा हूँ। आमतौर पर साफ खड़े पानी में परवरिश पाने वाले इस मच्छर के काटने से इस्लामाबाद में अब तक 500 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि रावलपिंडी में भी इतनी ही तादाद में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डेंगू की फोकल पर्सन डॉक्टर शफात खातून ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस वक्त बीमारी की शरह 15 से 20% है। इस वक्त हम जो हैं वो तकरीबन 450 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास डेली फॉलोअप्स पे आते हैं पेशेंट्स, उनको मिला के इतने पेशेंट्स हम देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास 160 के करीब जो है वो इंडोर एडमिशन्स हो चुके हैं। पिछले 2 से ढाई हफ्ते से हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट जो क्रिटिकल डेंगू के साथ आते हैं, सीवियर डेंगू के साथ, जिनको एडमिशन की और इलाज की ज़रूरत पड़ती है, यानी हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें एकदम से इजाफा हुआ है। हालिया बारिशों और सैलाब ने इस मसले को और पेचीदा कर दिया है, क्योंकि दूर दूर तक खड़े पानी में फंसे अफराद को डेंगू जैसे वायरस का सामना करना पड़ सकता है, जिसके पेश नज़र विफाकी महकमा सेहत इन इलाकों में इस वायरस से बचाव के लिए प्रोग्राम तरतीब दे रहा है।
اب چونکہ یہ فلڈ کے حوالے میں ایک سچویشن اس طرح کی ارائز ہوئی ہے اور ہمارا ایک پورا سسٹم اس پہ ورک کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں IDSR انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس ریسپانس، جس میں نہ صرف ڈینگی، فلڈ ریلیٹڈ جو اور بھی یا ویکٹر بورن ڈیزیزز ہم ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اور ہمیں ڈیلی بیسس پر ڈیٹا جو ہے وہ آتا ہے، جس میں ابھی تک جو سچویشن ہے اس میں آپ کے ایکیوٹ واٹری ڈائریا میکسیمم پلس ملیریا کے کیسز، ٹھیک ہے، اور اسکن انفیکشنز، آئی انفیکشنز، اس طرح کے ہمیں IDSR کے تھرو زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈینگی میں ابھی ہمیں ڈینگی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹا نہیں آیا ہے اس حوالے میں کہ ہم اس کو آؤٹ بریک سچویشن ڈیکلیئر کر سکیں، لیکن ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بالکل ویجیلنٹ ہیں۔ شہر میں رہنے والے احمد علی ہوں یا سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں سیلاب زدگان، سبھی ڈینگی کے خطرے سے دو چار تو ضرور ہیں، لیکن اگر محکمہ صحت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں تو اس مرض کو شکست دی جا سکتی ہے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سیلاب کے بعد وبائی بیماریوں کے شکار افراد اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ کیا ان وبائی بیماریوں اور ڈینگی سے بچنے کے لیے کوئی احتیاط یا اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں جو کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر کنسیڈر ہوں؟ کراچی سے وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ڈینگی کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ثاقب، حکومت کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں متاثرہ افراد کو بچانے اور ڈینگی جیسی بیماریوں پر کنٹرول کے لیے؟ جی اسد، سب سے پہلے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہوں یا شہر ہوں وہاں پر جو ڈینگی کے جو کیسز ہیں وہ کافی انڈر رپورٹڈ ہیں۔ اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو ایک دن میں ہی 400 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 15 ستمبر کو، اور اب ان کیسز کی تعداد 5000 سے زائد ہو چکی ہے جو کہ اس سال میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے بھی اگر آپ سچویشن کی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیں تو یہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2818 کیسز، یعنی 5000 سے پورے سال میں رپورٹ آنے والے کیسز کی بھی آدھی تعداد جو ہے وہ صرف ستمبر میں ہوئی ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام تر اقدامات کو بروئے کار لا رہی ہے، وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے تاکہ جو ڈینگی کا جو مرض ہے اس کو پھیلنے سے بچایا جا سکے۔ اب تک حکام نے اسے آؤٹ بریک یا کوئی وبا تو قرار نہیں دیا ہے، لیکن اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تیزی سے یہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں ہاسپٹلس میں زیادہ بیڈس چاہیے، زیادہ تعداد میں جو بیڈ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور وہ تمام جو بیڈ جو پہلے کرونا کے وبا میں کرونا کے پیشنٹس کے لیے مختص تھے، اب یہی جو بیڈس ہیں وہ ڈینگی کے پیشنٹس کو دیے جا رہے ہیں۔ اور اب بھی یہاں پر صورتحال یہ کہ جو بڑے شہر ہیں، بڑے شہروں کے بڑے ہاسپٹلس ہیں، وہاں پر ڈینگی کے مریضوں کو بیڈ ملنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں فیومیگیشن اور اسپرے کی بات کی جا رہی ہے۔ فیومیگیشن اور اسپرے کی جہاں تک بات کی جائے تو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 گاڑیوں کی مدد سے فیومیگیشن اور اسپرے کیا جا رہا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں صرف 30 گاڑیوں کے ساتھ اسپرے ناکافی ہے اور ان کو مزید بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں جو ڈینگی کی اس وقت صورتحال ہے۔ پچھلے 9 ماہ میں اب تک تقریباً 13 اموات بھی رپورٹ ہو چکی۔ پاکستان کی تاریخ میں آزادی کے 75 سال بعد پہلی مرتبہ اس سال یوم آزادی کے موقع پر ایک خواجہ سرا ببلی ملک کو قومی اسمبلی میں اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملا۔ ببلی ملک نے خواجہ سراؤں کے لیے بھی ملک بھر میں مساوی حقوق اور روزگار کی فراہمی کے بارے میں بات کی۔ اسلام آباد سے نصر الاسلام کی رپورٹ۔ محترم ببلی صاحبہ صاحب جو کہ پاکستان کی تاریخ میں قومی اسمبلی کے فلور پر خواجہ سرا کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والی ببلی ملک اس وقت شرکاء اجلاس کی توجہ اور نگاہ مرکز بنی جب انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے روایتی انداز میں خواتین و حضرات کے بجائے حاضرین محفل کہنے پر آمادہ کیا۔ جناب اسپیکر صاحب میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ انہوں نے جب کہا ببلی صاحبہ ببلی صاحب کہاں ہیں، تو مطلب وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ وہ پارلیمان جو بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے لکھتا ہے اور اس کے لیے جن سے لا بناتا ہے، وہ کتنا دور ہے ریئلٹی ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے مخاطب کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ نہایت معذرت کے ساتھ کہوں گی، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کافی دیر سے ایک جملہ سنتی رہی،
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तो ठीक है हम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात के दायरे से आप थोड़ा अलहदा रखते हैं, लेकिन अगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल कहें तो क्या ही बात है। बबली मलिक गुज़िश्ता 20 साल से मुआशरे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उनका कहना है कि इस अरसा में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पे जब बात होती है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मुश्किलात को देखा जाए, तो आप तो एक ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी में आपको आसानियाँ तलाश करनी पड़ें, क्योंकि वो तो पैदाइश से मरने तक मुश्किलात को ही फेस करते हैं। अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए वो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क उनकी ज़ात के साथ डेली सुबह नए सिरे से लगा होता है और उसको वो हमेशा फेस करते हैं। इसलिए कोई एक वक्त चुन के बताना कि मुश्किल वक्त कौन सा था, ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, अगर आप पूछें कि आपकी पूरी ज़िंदगी में कोई अच्छा वक्त कौन सा था, तो शायद कोई 2-4 लम्हे ऐसे हों जो हमें याद हों। 2018 में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर किए गए कानून के तहत शनाख्ती दस्तावेज़ में इन्हें एक ख़ास सिंबल दिया गया था और ये सिंबल रखने वालों को घर या अवामी मकामात पर हरासा करना जुर्म ठहराया गया है। बबली कहते हैं कि अगरचे नफाज में वक्त लगेगा, लेकिन इस कानून की फ़कत मंजूरी से ही तब्दीली देखी जा सकती है। कोई भी चीज़ है जब 75 ईयर्स के बाद एक लॉ बनता है, 73 ईयर्स के बाद 2018 में वो कंप्लीट होता है, तो 2 साल के अंदर वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, 4 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद आप चेंज देख लें ना, आपको डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, आपको एक्टर्स नज़र आ रही हैं, आपको मॉडल्स नज़र आ रही हैं, न्यूज़ कास्टर्स नज़र आ रही हैं, और वो सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 पर बात करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि इस कानून में अभी भी सुकम मौजूद हैं। अभी रिसेंटली मैं एक जगह बैठी हुई थी, तो बड़ा लॉजिकली सवाल है और मतलब मुझे बड़ा वो लगा कि हमने इस पे बात नहीं की। उसने कहा कि मर्द का बायां अंगूठा लगता है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे और औरत का दायां अंगूठा लगता है। आप तो ट्रांसजेंडर पर्सन है, आपके कार्ड पे एक्स लिखा है, तो वैलिड कौन सा थंब है, इम्प्रेशन है, क्या वो बायां है क्या वो दायां है? मतलब ये देखें ना, यहाँ पे आके एक सवाल है कि आपने एक जेंडर मार्क दे दिया है, लेकिन उसकी गाइडलाइन में आपने नहीं बताया कि अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जाके थंब इम्प्रेशन देंगे तो कौन सा देंगे। बबली मलिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए वजूद नामी एक इदारा चलाती हैं। उनका कहना है कि इस इदारे का मकसद यही था कि किसी को ये ना बताना पड़े कि वो मर्द और औरत से मुख्तलिफ हैं। बबली का ख्वाब है अपनी पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट पे देखना, किसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट पे देखना, किसी को एक ऐसे मुकाम पे देखना जो यूनाइटेड नेशन में जाके कह सके हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असोजा खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कनाडा के शहर ओंटारियो में होरॉन झील पर बनने वाला वाटर स्पाउट। Thank you.